हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ लास्ट वीडियो में हमने थर्ड चैप्टर जर्नल को कंप्लीट किया था। आई होप कि जर्नल चैप्टर अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ वी आर मूविंग टू द फोर्थ चैप्टर, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. The significant objective of financial accounting is to prepare financial accounts. In accounts, trading account, profit and loss account and balance sheet are included. In the company form, instead of trading account and profit and loss account, income statement is prepared. At the end of the year, profit and loss will be closed and will be transferred to balance sheet. A detailed explanation in this regard is undertaken in the subsequent chapter. Generally, at the end of the year, balance sheet is prepared. पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे होती है उसके स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं कि अकाउंट्स कैसे लिखा जाता है, किस अकाउंट्स में उसकी एंट्री होती है, एट द एंड ऑफ द ईयर कैसे कैसे प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करके उसको किस स्टेटमेंट में ट्रांसफर किया जाता है. There are two important components of balance sheet. First, capital and liability, and another is asset. Balance sheet is most important statement for final account. उसमें दो component है, very important two components are there, capital and liability, and another is asset. The final effect of every business transaction goes to above mentioned two components of balance sheet. It means that capital and liability and asset. As per the norms of double entry system, the total of above mentioned two components remain identical. Double entry system में capital, liability और asset दोनों का total always क्या होता है? Identical, यानी कि equal होता है. According to the terminology of accounting, these two components are known as capital and liability side and asset side. This can be represented in the equation form as follows. बैलेंस शीट के एक साइड को बोलते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड एंड दूसरी साइड को बोलते हैं असेट साइड. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन फॉर अकाउंटिंग. ये फॉर्मूला के ऊपर से ही ये पूरा फोर्थ चैप्टर डिपेंड करता है. असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. कैपिटल और लायबिलिटी जितनी ही असेट जो है वो होती है, A इज इक्वल्स टू C प्लस L. ये सारे की क्या है? शॉर्ट फॉर्म. A इज इक्वल्स टू C प्लस L. MCQ या तो फिर 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि इक्वेशन बताइए अकाउंटिंग का. सो A इज इक्वल्स टू C प्लस L. This is the American method of presentation of accounting transaction. This is modern approach. Under this traditional approach, on the basis of these rules, identically journal is prepared and finally final accounts are prepared. At the last, balance sheet is prepared in accounting equation. Effect of transaction is directly given in the balance sheet. ये एक तरह की अमेरिकन मेथड है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए. जनरली क्या होता है ट्रेडिशनल अप्रोच में, अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले जर्नल, फिर उसके बाद पोस्टिंग, फिर जो है ट्रायल बैलेंस एंड देयर आफ्टर फाइनल अकाउंट. और इस इक्वेशन के साथ डायरेक्टली हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में डायरेक्टली जो है वो इफेक्ट देते हैं. नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन एंड ट्रांजैक्शन. इन इक्वेशन अप्रोच, effect of transaction is directly given to the asset and capital liability side. Prior to this, we have undertaken study of types of accounts and their rules. We have acquired acquaintance about how to write journal entry keeping these rules in mind. Let us understand the equation method. अब ये directly बैलेंस शीट में इफेक्ट देने के लिए एक तो हमें जर्नल आनी चाहिए, और जर्नल किससे आएगी? अगर हमें तीनों अकाउंट्स के रूल पता होंगे तो. Keeping these rules in mind, let us understand the equation method. इस रूल को माइंड में रखते हुए let's understand this method. At the time of execution of equation method can be understood easily if business transactions are classified as under. अगर business transaction को इस तरह से classify किया जाए तो ये जो equation वाली जो method है वो easily हमें समझ में आ जाएगी.
फर्स्ट इज ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू गुड्स, उसमें क्या आएगा, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड गुड्स गोज आउट इन एनी अदर फॉर्म। गुड्स से रिलेटेड इतने ट्रांजेक्शन है जो इसमें रिकॉर्ड होंगे। सेकंड इज रेवेन्यू एक्सपेंस रिलेटेड ट्रांजेक्शंस, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू, सैलरी, वेजेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव expense etc. are included in expense. Now you all are aware about what are the incomes and what are the expenses. थर्ड वन इज असेट परचेज सेल्स ट्रांजेक्शन, असेट की सेल्स परचेज की होगी तो उसके ट्रांजेक्शंस। फोर्थ इज ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बोरोइंग ऑफ फंड्स एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स, बोरोइंग लोन एंड लेंडिंग लोन। नेक्स्ट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन असेट ओनली। अब ये चार तरह के अगर ट्रांजेक्शन होंगे, देयर कैन बी फॉलोइंग इफेक्ट ऑन ए इज इक्वल्स टू सी प्लस एल ऑफ अबव मेंशन ट्रांजेक्शन। इसकी इफेक्ट कैसे होगी इस इक्वेशन में? फर्स्ट इज इंक्रीज डिक्रीज इन ए ओनली, इंक्रीज इन वन असेट एंड डिक्रीज इन अनदर असेट। एक तो क्या होगा, या तो एक असेट में इंक्रीज होगा, दूसरी असेट में डिक्रीज होगा, तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ए ओनली, असेट में ही सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज होगा। दूसरी इफेक्ट इसकी क्या होगी, इंक्रीज और डिक्रीज इन ए एंड सी, असेट और कैपिटल दोनों में इंक्रीज डिक्रीज होगा। अगर असेट इंक्रीज होगी तो कैपिटल डिक्रीज होगी, अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो असेट डिक्रीज होगी। फिर इंक्रीज डिक्रीज इन ए एंड एल, असेट में और लायबिलिटी में दोनों में इंक्रीज डिक्रीज होगा। एंड फोर्थ इंक्रीज डिक्रीज इन कैपिटल एंड लायबिलिटी। इस तरह से इसमें चेंजेस आएंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशन के थ्रू अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल और लायबिलिटी का टोटल होगा वो ही होगा टोटल असेट का। ए इज इक्वल्स टू सी प्लस एल। ऐसे ट्रांजेक्शन होंगे असेट के, गुड्स के, रेवेन्यू के और जो है अदर बोरोइंग फंड्स के और लेंडिंग फंड्स के। इस तरह से ट्रांजेक्शन होंगे। उस हिसाब से ये तीनों में से किसमें चेंजेस आते हैं, इंक्रीज डिक्रीज किसमें होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए और रीड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।